Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine. And I just hope you all are working very hard toward your studies. Children, as we are doing the revisions, and I just hope you all are doing the revisions with me and watching this video, as some of you all are watching it also. So just watch the video, and whenever you find any doubt, ask the question also. Asking the question in the classroom is very important for you. So ask the question. Secondly, we are doing the revision of the chapter second, self and personality. Okay, where we have discussed up to the psychodynamic approach. Psychodynamic approach हमने discuss कर लिया है. Now in today's video, I am going to discuss with you the post-Freudian approach. Okay, so let's study about the post-Freudian approach. Post-Freudian basically known as, हम उन्हें कहते हैं those who come after the Freud. Post-Freudian are those who come after the Freud. Means they're also known as neo-Freudian. We call them what we call them neo-Freudian. Post-Freudian के बाद जो आते हैं उन्हें हम neo-Freudian भी कहते हैं. Means these two are the same name, post-Freudian or neo-Freudian. Okay, fine. Now, who are the person who come under the post-Freudian? I already discussed with you. Their names was Carl Jung, Alfred Adler, Erich Fromm, Erik Erikson, and Karen Harney. So one by one we will discuss everyone. So first of all, the first came the Carl Jung. सबसे पहले कौन आएगा? कार्ल जुंग. ठीक है, कौन आता है? कार्ल जुंग. कार्ल जुंग यूजुअली फर्स्टली इनिशियली वर्कड विद द सिगमंड फ्रेड. इन्होंने सबसे पहले सिगमंड फ्रेड के साथ काम किया था, एंड आफ्टर ऑन he doesn't agree with some of the concepts which is related to the Freud. Freud से related जो concepts थे वो उस पर agree नहीं कर रहे थे. And like Sigmund Freud completely focused on the consciousness, unconsciousness, subconsciousness, and the unconscious conflicts, repressed conflicts, totally focus on that one. Okay. Now, secondly, so he came with a new topic, and it is the collective unconscious. इन्होंने किसकी बात कही? इन्होंने collective unconscious की बात कही. Fine. Carl Jung. So Carl Jung give more emphasis on aims and aspirations. Aims and aspirations. Okay. Aims and aspiration. Carl Jung का कहना था, he said that human beings were guided not only by the biological force but also guided more by the psychological force. Means he said that human being is not only related to the biological aspect. Human beings do not only focus on the biological forces but also governed by the psychological. Means a human being is also have some goals and aspiration in their life. उनकी सिर्फ biologically needs नहीं होती हैं. They also have psychological need, social need. The human being have the need for achievement. They also have the need for power. They also have the need for curiosity. So aims and aspiration. Carl Jung came up with a different concept from the Sigmund Freud.
Okay, just different concept. Sigmund Freud, who totally focus on the biological aspect, psychosexual aspect, that उसी से ही human being govern होता है. But Jung came up the another aspect of the human being, which is that human being is governed by the aims and aspiration. Goal, human being का goal होता है, and the human being become very much motivated toward that goal and very much concerned toward that goal to achieve it, उसको achieve करने के लिए. So he talks about, he come up with a new term and talks about collective unconscious. क्या? Collective unconscious. Unconscious नहीं, collective unconscious. किसकी बात कहे? कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात इन्होंने कही कि हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज ऑल्सो नोन एज प्रीमॉर्डियल इमेजेस. Primordial images. Collective unconscious is also known as primordial images. Okay? Or it is also known as archetype. इसी primordial images को हम archetypes कहते हैं. ठीक है? Primordial images is also known as archetype. Collective unconscious. Primordial or images or archetypes are those which relate you with the spiritual world and belief in the God. These all things are included under this. So this is something, a concept of Carl Jung. After the Carl Jung, the next concept is given by, so the second type came after the Carl Jung is the Karen Harney. She is the female psychologist. Karen Harney has given, she has given the optimistic view, optimism. She has given the optimistic view of human nature. उन्होंने क्या व्यू दिया है? ऑप्टिमिज्म दिया है. ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन nature. She told that the human being should be optimistic, not to be pessimistic, and she talked about so many things, like she uses the term basic anxiety. She uses the term basic anxiety. So what is basic anxiety? Basic anxiety, she told that basic anxiety usually develop in the childhood, and childhood में ये develop होता है basic anxiety, and this anxiety basically developed due to the disturbed interpersonal relationship in the childhood. अगर childhood में कहीं से भी कोई disturbed relationship होता है, तो because of that the child develop the basic anxiety. तो इन्होंने कहा कि मच ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी लोगों को होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द चाइल्डहुड. सो दिस इज द कैरन हार्नी व्यू पॉइंट. द थर्ड व्यू पॉइंट इज द एल्फ्रेड एडलर. एल्फ्रेड एडलर इनका व्यू पॉइंट था. Alfred Adler more focus on the individual psychology. ये किस पे फोकस थे सबसे ज्यादा? इन्होंने फोकस किया इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे. किस पे? इंडिविजुअल साइकोलॉजी. मीन्स he has a view that the person's personal goal are the source of motivation for them. ह्यूमन बीइंग का जो खुद का गोल होता है वो उनको मोटिवेट ज़्यादा करता है. सो पर्सनल गोल आर द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर देम. ओके, सो दी एंड ही हैज गिवन हिज ओन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी. ओके, सो 3 psychologists I have discussed with you. First Carl Jung, second Karen Harney, third is Alfred Adler. Fourth is Erich Fromm.
एरिक फ्रॉम की साइकोलॉजी के नेम थे सोशल साइकोलॉजी. एरिक फ्रॉम टॉक अबाउट the fourth is Erich Fromm. Erich Fromm is a psychologist who talk about that human being are social being. Human being क्या है? Social being है. Okay? So children, as we have discussed the Neo Freudian approach, Neo Freudian हमने discuss कर लिया था. And so now अभी different approaches to the study of personality भी मैंने आप सभी से discuss की हुई है. So अब मैं आपसे assessment of personality discuss कर रही हूँ. ठीक है? So I just hope कि आपको board visible है properly. So assessment of personality. असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इस टॉपिक का मतलब है कि पर्सनालिटी की असेसमेंट आप कैसे करोगे. हाउ यू विल डू द असेसमेंट ऑफ द पर्सन's पर्सनालिटी. सो देर आर सो मेनी टेक्निक्स बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन डू द असेसमेंट. द टेक्निक्स आर, फर्स्ट टेक्निक इज सेल्फ रिपोर्ट. सेकेंड टेक्निक इज प्रोजेक्टिव. Third is behavioral analysis. Third is behavioral analysis. ठीक है, ये 3 टेक्निक्स हैं बच्चों. आई होप आपको ये दिख रहा है. सेल्फ रिपोर्ट, प्रोजेक्टिव और बिहेवियर एनालिसिस. ये 3 टेक्निक्स हैं जिससे कि आप पर्सनालिटी की असेसमेंट कर सकते हैं. ओके. सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट नाम से पता चल रहा है समथिंग जो कि हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं. तो सेल्फ रिपोर्ट वो टेक्निक है जिसमें हम चीज़ें खुद रिपोर्ट करते हैं. तो इट इज़ अ टेक्निक वेयर द पर्सन एसेस देमसेल्फ. ठीक है, खुद से खुद को एसेस करता है. एंड दिस टेक्निक इज गिवन बाय द ऑलपॉट. ऑलपॉट ने ये सेल्फ रिपोर्ट की टेक्निक दी है. ठीक है, ऑलपॉट ने दिया है ये सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक. ठीक है, ऑलपॉट ने सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक के बारे में डिस्कस किया कि इट इज़ अ टेक्निक वेयर वी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ. खुद के बारे में खुद से इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ इसमें उन्होंने ये भी बोला कि ही टॉक अबाउट द 3 मैथड. उन्होंने 3 मैथड्स बताए. कौन कौन से मैथड? MMPI, EPQ और 16PL. ये 3 मैथड इन्होंने बताया. MMPI, EPQ और 16 मैथड. ये तीनों ही जो हैं ये सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है. MMPI भी सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है, EPQ भी है और 16PL भी है. ठीक है, MMPI का फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. MMPI मिनेसोटा. मिनेसोटा इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस. ठीक है, तो MMPI का फुल फॉर्म लिख देते हैं. मिनेसोटा मल्टीफेसिक मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन. ओके, इन्वेंट्री आपको बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, लाइट इज कमिंग ओवर हियर. सो आप मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री आप लिख सकते हैं. ये एक इन्वेंट्री है. हियर आई एम राइटिंग इट. यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड टेस्ट. आपको इन्वेंट्री और टेस्ट में डिफरेंस मालूम है कि इन्वेंट्री क्या होती है और टेस्ट क्या होता है? डू यू नो? सी, टेस्ट जो होता है इट मेजर्स द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, द सिंगल एट्रीब्यूट. बट जो इन्वेंट्री होती है उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट आते हैं. ठीक है, इट मेजर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. और उसमें देर आर इन्वेंट्री मीन्स इट इंक्लूड सो मेनी टेस्ट. टेस्ट एक ही चीज़ को मेजर कर रहा है और इन्वेंट्री में और भी सब टेस्ट होते हैं.
जैसे मिनेसोटा मल्टीफेजेड पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है, इसमें और भी आपको सब टेस्ट मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इन्वेंट्री है इसे हैथवे एंड मैककिनले ने दिया था, दिस इन्वेंट्री। सो इसे हैथवे एंड मैककिनले ने दिया था, ठीक है, हैथवे और मैककिनले। ये जो इन्वेंट्री है हैथवे एंड मैककिनले ने जो दिया था इन्वेंट्री, इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं और इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, हैथवे एंड मैककिनले। आई एम रबिंग द बोर्ड सो दैट वी कैन डू द मोर डिस्क्रिप्शन। ये चिल्ड्रन आप सभी का रिवीजन हो रहा है, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो एक रिवीजन हो रहा है। सो जस्ट अज्यूम इट इन अ रिवीजन फॉर्म, ठीक है, इसे एक रिवीजन फॉर्म में अज्यूम करिए। चलिए, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब क्या है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में MMPI हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वी आर डिस्कसिंग द MMPI। MMPI इज गिवन बाय हैथवे एंड मैककिनले। हैथवे एंड मैककिनले, MMPI, हैथवे और मैककिनले इन्होंने दिया है। MMPI का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया आपको, मिनेसोटा मल्टीफेजेड पर्सनालिटी। इट इज गिवन बाय हैथवे एंड मैककिनले। इसमें 567 स्टेटमेंट होते हैं और 10 सब स्केल होता है। इट कंटेन द 10 सब स्केल एंड 567 स्टेटमेंट, ठीक है। इट कंटेन द 567 स्टेटमेंट एंड 10 सब स्केल। स्केल्स के जो नाम हैं आपको बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। नाम दिस वाज डन, हैथवे एंड मैककिनले ने दिया, 567 स्टेटमेंट है, 10 सब स्केल होता है। MMPI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका एक इंडियन अडेप्टेशन भी आया है जिसे हम GMPI भी कहते हैं। GMPI, J फॉर जोधपुर, J डिनोट्स फॉर जोधपुर, जोधपुर मल्टीफेजेड GMPI, जोधपुर मल्टीफेजेड पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसे मलिक और जोशी ने दिया है। इट इज गिवन बाय मलिक एंड जोशी। किसने दिया इसे, मलिक एंड जोशी ने दिया। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए, सो MMPI तो क्लियर हो गया, MMPI क्या करता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। MMPI के बाद सेकेंड जो इसमें आता है वो है EPQ। EPQ भी एक सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, जैसे MMPI है सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनर के फॉर्म में होता है जो हम सब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं और सब्जेक्ट उस पर आंसर करता है टिक डाउन में, यस नो में, ट्रू फॉल्स में, वट एवर द रिस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करता है। तो EPQ आइजन पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, फाइन। तो MMPI भी एक सेल्फ रिपोर्ट है जिसमें एक क्वेश्चनर के फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली EPQ भी एक टेस्ट होता है, ये 3 डायमेंशंस को मेजर करता है। EPQ में E डिनोट फॉर आइजन और इसे एक्जे आइजन ने ही दिया है, ये मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है। और आइजन ने 3 डायमेंशन को मेजर किया है। फर्स्ट डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकेंड है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकेंड है, व्हाट इज द सेकेंड, एस्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन। It is somewhere similar to the extrovert and introvert. ये extrovert और introvert की क्वालिटी से रिलेटेड है। थर्ड है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी।
साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, ये 3 डायमेंशंस हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। ओके, तो ये तीनों क्लियर हो गया। चलिए, आई एम रबिंग द बोर्ड, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। या तो पहले न्यूरोटिसिज्म मीन्स दोज हु आर इमोशनली अनस्टेबल। इमोशनली स्टेबल वर्सेस इमोशनली अनस्टेबल, वो जो इमोशनली अनस्टेबल है, न्यूरोटिक है, ठीक है। इमोशनली क्या है, अनस्टेबल है। तो क्या हो सकता है, इमोशनली अनस्टेबल होंगे तो क्या उन्हें मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, क्विकली लूज कंट्रोल करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं न्यूरोटिक। जिसे हम बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज न्यूरोटिक, वो जो पर्सन है वो क्या है, वो न्यूरोटिक है। वेरी सच काइंड ऑफ पर्सन्स आर वेरी एंशियस, वेरी मूडी, वेरी टची, वेरी रेस्टलेस, वेरी क्विकली लूज कंट्रोल। और जस्ट अपोजिट टू इनके होते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, दे हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर देयर इमोशन। इनका अपने इमोशंस पे बहुत गुड कमांड होता है। ये जल्दी लूज कंट्रोल नहीं करते, इम्पल्सिव नहीं होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड द अदर वंस फीलिंग, तो इन्हें हम इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन वो है मीन्स द पर्सन इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, सोशली आउटगोइंग, सोशली विड्रॉन, ओके, एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दोज एक्सट्रोवर्ट पीपल हैव। आपसे मैंने बताया ना बच्चों कि एक्स्ट्रावर्जन को आप एक्सट्रोवर्ट से कोरिलेट कर सकते हो। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सट्रोवर्ट पीपल में होती है, सोशली आउटगोइंग, विड्रॉन होना, ये एक्स्ट्रोवर्जन में भी है। इंट्रावर्जन इज रिलेटेड टू द इंट्रोवर्ट, ये सोशली आउटगोइंग नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीजें होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। साइकोटिसिज्म जस्ट अपोजिट टू सोशिएबिलिटी होता है। सोशिएबिलिटी मीन्स पीपल इज वेरी सोशिएबल, they relate with the other one, they have the friends, they interact with the person, and psychotic जो होते हैं just opposite to this one, they are unsociable। आप psychotic के लिए जो term use कर सकते हो आप unsociable use कर सकते हो, कि जो psychotic people होते हैं वो unsociable होते हैं, और neurotic जो होते हैं वो emotionally unstable होते हैं। सो साइकोटिक जो होते हैं वो अनसोशिएबल होते हैं, तो यानी वो जल्दी लोगों से रिलेट नहीं कर पाते, दे आर नॉट हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स। साइकोटिक होते हैं, दे वांट टू बी अलोन, अकेले रहना चाहते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो कि उनके साथ है, अनसोशिएबल, ठीक है। सो आई होप अप टू द EPQ इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी and the self-report measurement of personality is 16 PM. The first I discussed with you, पहला मैंने आपसे डिस्कस किया MMPI, सेकेंड था EPQ and third is 16 PM. Peer here means the personality factor. Peer इधर क्या है? Peer क्या है? Personality factor है। कौन सा personality factor? 16 पर्सनालिटी फैक्टर। सो ये जो टूल है, ये जो टेक्निक है 16 PF जिसे हम कह रहे हैं, ये 16 पर्सनालिटी के फैक्टर्स को मेजर करता है। आपके 16 एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को ये मेजर करता है, ठीक है। देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑल्सो, 16 के कैटेगरीज एंड एक्टिवनेस, आपके इम्पल्सिव बिहेवियर को, आपके एग्रेसिव बिहेवियर को, आपकी इन सारी चीज़ों को ये डिस्कस करता है। सो इज इट क्लियर? सो हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट डिस्कस कर लिया। एंड वन मोर थिंग अबाउट इट, जस्ट लाइक MMPI इज गिवन बाय Hathaway and McKinley and EPQ is given by Eisen, it is given by Cattell। 16 PF कैटल ने दिया, ठीक है, रेमंड बी कैटल, ठीक है, इन्होंने 16 PF को मार्क किया। सो ये सारी कुछ चीजें याद रखो। ओके, नाउ आई एम रबिंग द बोर्ड,
कि आप रिवीजन कर रहे होगे। द नेक्स्ट मेथड ऑफ द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोजेक्टेड टेक्निक एंड थर्ड इज बिहेवियरल एनालिसिस। सो क्विकली थोड़ा सा बिहेवियरल एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। बिहेवियरल एनालिसिस क्या नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये जो टेक्निक है वो क्या कर रही है, वो बिहेवियर की स्टडी कर रही है। व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डूइंग द स्टडी ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस, यानी बिहेवियर की एनालिसिस करना, बिहेवियर की स्टडी करना, ये कर रहा है। ओके, सो बिहेवियर की स्टडी यानी बिहेवियर की एनालिसिस हम कई तरीके से कर सकते हैं। So there are so many methods of behavior analysis. First is interview. Second is observation. Third is first is interview, second is observation. Okay, interview, observation, third is behavior analysis, sorry not analysis, it is behavior rating. ये सारे behavioral analysis से पार्ट हैं, interview, observation, behavior rating, nomination, fifth is situational stress test. ठीक है, सो ये 5 हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर रेटिंग, नॉमिनेशन और सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट. सो आई जस्ट होप इट इज विजिबल टू यू ऑल प्रॉपरली. सो बिहेवियर की एनालिसिस हम इन कुछ मैथड से कर सकते हैं. हम इंटरव्यू कर सकते हैं, we do the observation also, we can do the behavioral rating also, we can do the nomination, we can use the method of nomination, we can use the method of situational stress test. Situational stress test means ये तो बहुत clearly indicate कर रहा है नाम से ही कि stressful situation create करना और उसमें person के behavior को देखना कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. मीन्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो जैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा उसके बेसिस पे आप उसके बिहेवियर की एनालिसिस कर सकते हैं. आप उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं जैसे भी वो रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट ये वो टेस्ट होता है जिसमें वी इन्वॉल्व एंड इंडल्ज द पर्सन इनटू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन and we see how the person is reacting in that particular situation. इंटरव्यू आपको पता है इट इज यूजली कंडक्टेड फेस टू फेस होता है इंटरव्यू. ठीक है, और इंटरव्यू से हम कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन सीक आउट कर सकते हैं जो हमें चाहिए उसके बिहेवियर को जानने के लिए. ऑब्जर्वेशन भी टेक्निक है. ऑब्जर्वेशन कई तरीके की होती हैं, लाइक पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट. ठीक है, ऐसे भी पार्टिसिपेट करके भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो किसी भी ग्रुप्स में. नॉन पार्टिसिपेंट मीन्स विदाउट पार्टिसिपेशन भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो. तो सो मेनी मैथड्स आर देयर. फिर है बिहेवियरल रेटिंग. ठीक है, बिहेवियरल रेटिंग है जिसमें हम रेट करते हैं बिहेवियर, हम बिहेवियर को रेट करते हैं. बिहेवियर रेटिंग यूजली जो नोन पर्सन होते हैं उनसे करवाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल दोज हु फैमिलियर टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्टडी एनीवन्स पर्सनालिटी, लाइक इन योर क्लास इफ आई वांट टू स्टडी द पर्सनालिटी ऑफ द सोनम, सो सोनम को जो अच्छे से जानता होगा आई विल गिव द क्वेश्चनर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन रेट अबाउट द सोनम. ओके, सो in this manner we can do the analysis of the person behavior. Nomination is also one of the technique. Nomination भी एक टेक्निक है. नॉमिनेशन में यूजली क्या होता है, वी नॉमिनेट, हम लोग नॉमिनेट करते हैं, चूज करते हैं. और ये देखा गया है कि जैसे वी यूजली चूज दोज पर्सन एंड दोज पीपल whose likes and dislikes are very similar to us.
हम उसी को ही चूज़ करते हैं जिसके लाइक्स और डिसलाइक हमसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। नॉमिनेशन में जैसे फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे टीचर को इफ़ अ टीचर हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर एनालिसिस मेथड पढ़ रहे हैं। इफ़ अ टीचर, अगर किसी टीचर को किसी क्लास के स्टूडेंट्स की बिहेवियरल एनालिसिस करनी है, उनको एनालाइज करना है किसी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, तो वो नॉमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकती है। जैसे द टीचर कैन चूज़ वन ऑफ द स्टूडेंट और मेक अ ग्रुप, जैसे कुछ ग्रुप बना दे और स्टूडेंट से बोले कि आप को एक ग्रुप बनाना है और आप नॉमिनेट करिए कि कौन ग्रुप ए में रहेगा, कौन ग्रुप बी में, कौन ग्रुप सी में, कौन ग्रुप डी में। तो ऑलरेडी आप देखेंगे ग्रुपिज्म जो ग्रुप बनेगा वो लाइक माइंडेड पीपल्स का बनेगा, जो एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करते हैं वो मिलके एक ग्रुप बना लेंगे। सो आई डिस्कस विद यू चिल्ड्रन द 2 मेथड ऑफ फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच।